स्लाइड्स शो हो रही हैं? स्लाइड्स नजर आ रही है सबको? सर नजर नहीं आ रही सर। अब अभी आ रही है सर, अभी आ रही है सर। Okay. Okay. Welcome to the quantum course. This is lecture number 7 of quantity surveying and civil engineering practice. This lecture will be an introductory lecture towards the quantity surveying and its basics. Let's introduce you people towards the quantity surveying. What is quantity surveying? So the action or profession of a person who estimates the cost of the materials and labor necessary for a construction job that person is basically called as quantity surveyor or QS. In the short form, it is called as QS, quantity surveyor. And they might be working on the behalf of consultants, or they might be working on the behalf of contractor, or on the behalf of client as well. So what do you think what the estimation means in simple terms or simple English? आप मुझे बताएं कि estimation का क्या मतलब है? Simple English word अगर जो है उसको in terms of English language हम अगर उसको देखें तो what does estimation means? Yeah, I need response from you people. किसी को नहीं पता? सर assessment सर, estimation means assessment सर। Assessment. और कोई बता दें? Sir, calculation of the quantity. Calculation of the quantity. Estimation और calculation में क्या फर्क है? बेसिकली एस्टिमेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वही चीज आए जो जो एक्चुअली कंज्यूम हुई है वही क्वांटिटीज आए। एस्टिमेशन का मतलब जो है उर्दू में अगर हम कहें तो वो तखमीना लगाना या अंदाजा लगाना कि कितना मटेरियल यूज होगा या कितना कॉस्ट आएगा। तो estimation is not the exact cost calculation. Exact cost calculation जो है वो आप normally when the project is completed आप तभी कर सकते हैं before when the project is is in progress, or when the project is going to be started. तो start में आप exact cost नहीं calculate कर सकते. So estimation is just an approximate value, which is or you can say most probable value of the material to be consumed, or most probable value of the cost which will be on the project. To estimate an estimate of the cost of a construction job is the probable cost of that job as computed from the plans and specifications. So you need the plans and specification for the estimation. Here is a tip for judging the quality of estimation. There he's saying that for a good estimate, the actual cost of a project should not
differ by more than 5 to 10% from its estimated cost. आपने जो एस्टिमेट लगाया है और जो एक्चुअल कॉस्ट आया है प्रोजेक्ट पे वो 5 या 10% से ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपका एस्टिमेट अच्छा एस्टिमेट है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि प्रोजेक्ट में कोई अनयूजुअल सरकमस्टांसेस नहीं आए हों या कोई अनयूजुअल इवेंट ना हो, तो ये चीजें ना हुई हो, तब आप अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दैट विल बी अ गुड एस्टिमेट। अगर आपका 5 to 10% डिफरेंस है। Here are some other definitions of estimation: a rough calculation of the value, number or quantity or extent of something, or you can say estimation is a scientific way of working out the approximate cost of an engineering project before execution of the work. So it is a scientific way of working out the approximate cost. Estimation is totally different from exact cost calculation after the completion of the project. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि exact cost calculation can be done when the project is completed, but estimation is something which you are doing before the project is started or when the project is in progress. The most important input parameters for doing or preparing a good estimate is the knowledge of the construction procedures. You must be familiar with the construction procedures. आपको अगर ये नहीं पता कि जो है फाउंडेशन या फॉर्मवर्क पहले होता है या कंक्रीटिंग पहले होती है, या जो आपको सीक्वेंस है कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर का वो आपको प्रॉपरली नहीं पता, तो आपके एस्टिमेट में गलतियां ज्यादा होंगी। And also you must be familiar with the cost of the materials and labor, and their skills, experience, and good judgment. Okay, you people tell me that what is the importance of the estimation? ये estimation हम क्यों करते हैं? अगर हम ना करें तो क्या होगा? सर एस्टिमेशन के बगैर हम बिड ही नहीं कर सकते सर। Okay, good. So it is required for the bidding process for a contractor. ठीक है? ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? ठीक है मैंने? यस सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई बता दे। सोचें इस पे और क्या और कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू को। सर एस्टिमेशन की वजह से हमें पता पे चल जाता है कि मतलब ये कौन, मतलब ये जो प्रोडक्ट हम, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो किस क्वालिटी के है, मतलब वो तो या ये क्वालिटी, मतलब ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास मतलब स्टैंडर्ड के लिहाज से है या मतलब वो क्वालिटी हमारे पास कमजोर है या अच्छी है सर, तो इस वजह से भी हम एस्टिमेशन मतलब हमारे लिए करामद है। अच्छा ठीक है, और कोई पॉइंट या आइडिया? अगर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ये चलें आप अपना घर बना रहे हो और आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है टोटल। आप
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, आप अंदाजा नहीं लगाते कि कितना इस पे कॉस्ट आएगा। आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते तो बीच में आपके सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो फिर भी आपका काम सिर्फ 10 या 20% हुआ होता है। तो इसके लिए भी तो जरूरी है ना कि आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपके प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने ब्लाइंडली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो वो बीच में ही स्टक हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंस है कि नहीं? अगर आपको पता होगा कि इतना कॉस्ट आएगा, मैं बस इतने 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 रुपीस हैं या इतने मेरा इतना बजट है, तो आप वो चीज स्टार्ट ही नहीं करेंगे, इनिशिएट ही नहीं करेंगे, या उसके लिए कोई अल्टरनेट तरीका ढूंढेंगे। इसके अलावा जो है वो क्लाइंट की मैं बात करूं तो क्लाइंट अगर अपने लिए एक एस्टिमेट प्रिपेयर करता है बिफोर इनवाइटिंग द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द बिडिंग पर्पस, तो उसको उसका फायदा क्या होता है कि उसको एटलीस्ट एक बेसलाइन मिल जाती है। अगर उसको अंदाजा नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आता है मैक्सिमम, और वो ब्लाइंडली कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करता है, तो क्या होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा रेट कोट करेगा, कोई कम करेगा, तो उसका अंदाजा ही नहीं होगा कि एज पर माय वर्कआउट और एज पर माय कैलकुलेशन इस पे एक्चुअली कॉस्ट कितना आ रहा है। हो सकता है उस पे 1 लाख रुपए कॉस्ट आ रहा हो और कॉन्ट्रैक्टर उससे 3 लाख रुपए ले ले, 1.5 लाख लेने चाहिए सब कुछ प्रॉफिट वगैरह मिलाकर, लेकिन हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर उससे डबल ट्रिपल ले ले, क्योंकि क्लाइंट को तो अंदाजा ही नहीं है इस पे कितना कॉस्ट आ रहा है। तो इसलिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा आपकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, जब आप फिजिबिलिटी स्टडी सबमिट करते हैं PC1 PC2 वगैरह, उसमें भी आपको कॉस्ट की एस्टिमेट, कॉस्ट या क्वांटिटी एस्टिमेट वगैरह सबमिट करना होता है। Another thing is a requirement of controlled materials. जैसे कि आपके लिए कॉस्ट का पता होना जरूरी है, इसी तरह आपको मटेरियल का भी पता होना इम्पोर्टेंट है। लेट्स से आप सोच रहे हैं कि आप जो है अपने अपने इस प्रोजेक्ट पे एक खास किस्म का स्टोन लगाना चाह रहे हैं, और आपको आइडिया नहीं है कि उस वो आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए उसकी। तब जब मार्केट जाते हैं लेने के लिए, या तो आप ज्यादा ले आएंगे या उस थोड़ा ले आएंगे। जब वो ले आएंगे आप कम कम पड़ जाएगा, या अगर ज्यादा लाते हैं तो वो जो है जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा बच जाएगा आपके पास। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप एक प्रॉपर क्वांटिटी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल्स की लेकर आए। तो ये टेंडर्स की बात हो रही है जो कि अभी आप में से एक ने की है कि टेंडरिंग वगैरह के लिए जरूरी है। और इसके अलावा प्लानिंग और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है एस्टिमेशन। अब वो कैसे, कोई बता सकता है कैसे? प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा उसका एस्टिमेट लगाने के लिए भी आपको मटेरियल्स का या क्वांटिटी ऑफ वर्क का पता होना चाहिए कि कितना काम की कितनी क्वांटिटी हमें करनी है। तो ये कैसे होगा? स्केड्यूलिंग इनका आपस में क्या रिलेशन है? सर वो फिर एस्केलेशन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इस बुलेट में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग के लिए भी क्वांटिटी एस्टिमेशन जरूरी है, तो वो क्यों, कैसे, इनका आपस में क्या रिलेशन है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो सेकंड बुलेट है उसमें लिखा है।
सर ये नंबर ऑफ लेबर पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ लेबर पे डिपेंड करेगा। लेट्स से अगर आपने एक मरला जमीन जो है उसके लिए बेसमेंट में एक्सकेवेशन करनी है, उसके लिए आपको वो अगर आप एक मजदूर पे करते हैं या एक लेबर लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो 2 हफ्ते एक्सकेवेशन के लगते हैं उसके, या 3 हफ्ते एक्सकेवेशन के लगते हैं। अगर आप 2 लगाएंगे तो उसकी ड्यूरेशन आधी हो जाएगी। अगर आप 3 लेबर्स लगाएंगे तो उसकी ड्यूरेशन और भी कम हो जाएगी। तो अगर आपको क्वांटिटी का पता है और आपको ये पता है कि एक लेबर जो है पर डे कितनी एक्सकेवेशन कर सकता है मैक्सिमम, तो आप ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क की कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? यस सर। ओके। Then the next point of discussion is what are the qualities of a good estimator? What do you think? What should be the qualities of a good estimator? सर वो इकोनॉमिकल भी हो और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना करे सर। क्वालिटी भी एस्टिमेशन की क्वालिटी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एस्टिमेशन की क्वालिटी कैसे होती है? सर एस्टिमेशन की क्वालिटी नहीं सर, मटेरियल की क्वालिटी। अच्छा, तो मटेरियल की क्वालिटी तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगी ना कि आपने ये मटेरियल यूज करना है। सर फिर ठीक है, फिर सर फिर वो इकोनॉमिकली डिजाइन करेगा सर। ओके। एनीवन एल्स? सर एक्सपीरियंस सर होना उसकी चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब ज्यादा हो सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसकी ज्यादा हो सर। उसका ज्यादा उसको पता होना चाहिए कि इस एरिया में जो है ट्रांसपोर्टेशन, लेट्स से अगर एक साइट है वहां पे रोड का एक्सेस नहीं है या प्रॉपर रोड का एक्सेस नहीं है, तो वहां पे जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी मुश्किल होगी, तो उसका कॉस्ट भी बीच में ऐड करे। उसको एरिया का अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे मटेरियल पहुंचाने का कितना कॉस्ट आएगा, या यहाँ पे नियरेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल्स क्या है। इसके अलावा उसको वहाँ उस लोकल एरिया के जो लेबर्स हैं उनका अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल हैं या नहीं जो ये स्पेशल काम कर सकें। उसको द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई एम सेइंग, उसको ड्राइंग्स रीड करना आती हो। उसको ड्राइंग्स रीड करना आती हो। ड्राइंग्स की अगर एक बंदे को ड्राइंग्स रीड नहीं करना आती प्रॉपर्ली, तो वो क्या करेगा? एस्टिमेशन में गलतियां करेगा। और सर इसके साथ ये भी है ना सर, मैथमेटिक्स, अगर उसका मैथमेटिक्स कमजोर हो तो फिर भी वो एस्टिमेशन नहीं मैथमेटिक्स, कर सकता। एग्जैक्टली, इसी उसकी मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि आप ये ख्याल में और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर इमेजिनेशन पावर भी उसकी मतलब अच्छी हो सर। इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। गुड। अगर वो चीजों को इमेजिन नहीं कर पाता कि ये स्ट्रक्चर बन के कैसा लगेगा, या ड्राइंग्स में एक जगह आपको शो की गई है कि तो वो एक्चुअली कैसे होगी, then he will not be able to extract the information from the drawings. So let's see what is written over here. So the first bullet is saying that the estimator must have good knowledge regarding the important rules of quantity surveying and construction work. He must thoroughly understand the drawings. ये भी हमने डिस्कस किया। He must also be clearly informed about the specifications as well. देखिए हमने मिड टर्म के कोर्स में डिस्कस किया था व्हाट इज ड्राइंग एंड व्हाट इज स्पेसिफिकेशन। कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की आपने ड्राइंग्स में दी होती है और जो
इंफॉर्मेशन आप ड्राइंग्स में नहीं दे सकते वो आपने स्पेसिफिकेशंस में शो की होती है। तो इन केस अगर आपने ड्राइंग में ये शो किया हुआ है कि डोर ओपनिंग जो है वो 4 फीट बाय 7 फीट है, लेकिन ड्राइंग में ये तो स्पेसिफाई नहीं हुआ होता कि वहां पे वुडन डोर इंस्टॉल होगा या स्टील डोर या एल्यूमिनियम डोर इंस्टॉल होगा, ना ही ये मेंशन होता है कि उसके ऊपर पेंट करना है, पॉलिश करनी है, क्या करना है, तो कितने कोट्स करने हैं। तो जो एस्टिमेटर है वो जब एस्टिमेट लगा रहा होगा तो he must be given the or he must be provided with the specifications of the project, ताकि उसको अंदाजा हो कि अगर वुडन डोर लगाना है तो उसका साइज क्या है, उसके ऊपर कितने कोट्स पेंट के करने हैं, क्या पॉलिश करनी है या जो भी करना है फिनिशिंग उसका क्या होगा। तो इसी तरह बाकी भी चीजें आ जाती हैं, जिस तरह प्लास्टर वर्क या पेंट वर्क फॉर द वॉल्स, तो उसको स्पेसिफिकेशंस का पता होना लाजमी है। गुड जजमेंट regarding the localities and different jobs and different workmen, selection of good method for preparation of estimate, and ability to be careful, thorough, and hardworking and accurate. Ability to collect and classify and evaluate data relating to estimation. यहाँ पे जो डेटा की मैनेजमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एस्टिमेशन की नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाता है। आज जब कैलकुलेशन या एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें या बहुत सारे आइटम्स आपको एस्टिमेट करना पड़ते हैं, एंड उन सबको प्रॉपरली आप ऑर्गेनाइज नहीं करते तो वो आपके लिए कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। So you must properly classify each and every type of material and properly categorize it for better presentation. And another last thing is ability to visualize all the steps during the process of construction. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है और आपको असाइन किया गया कि आप एस्टिमेट करें इस बिल्डिंग क्वांटिटीज एंड कॉस्ट, तो आपको कहा जाता है कि आप साइट विजिट कर लें एक बार। तो आप साइट विजिट करने के दौरान आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग बताएं प्लीज। ड्यूरिंग योर विजिट टू द साइट आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे? सर ये न्यू बिल्डिंग के लिए या रिनोवेशन के लिए? सर नहीं, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है। सर पहले तो हम रोड देखेंगे कि एक्सेस है कि नहीं है सर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा ठीक है, गुड। सर सेकंड मटेरियल देखेंगे कि यहाँ पे मटेरियल इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, और सर वाटर भी देखेंगे कि वाटर सोर्स नज़दीक है कि नहीं है या हमें बोरिंग करनी पड़ेगी सर। गुड गुड। और सर फिलहाल तो यही देखेंगे सर। So note the location. You have to get the data regarding the soil type, ताकि आपको पता हो कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड नहीं की गई फिलहाल, तो आप एक साइट का स्केच बना सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बात की कि आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या पावर या वाटर की रिसोर्सेज आप चेक करेंगे
के हैं कि नहीं है। और बैंकिंग फैसिलिटीज, व्हाट इज बैंकिंग फैसिलिटीज? कि बैंक है या नहीं वहां पर, एलाइड बैंक या मीजान बैंक, ये कह रहे हैं यहाँ पर, इस बात की इन बैंक्स की बात हो रही है। सर बैंक एक फैसिलिटी आई थिंक फाइनेंशियली फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहा है इससे, मतलब कि मतलब उनके पास फाइनेंशियली मतलब वो वैसे बैंक कहते किसको है? अगर मैं उसको भूल जाए, ये अलाइड बैंक या जो भी बैंक्स होते हैं, दी वर्ड बैंक, बैंक का मतलब क्या है? जैसे ब्लड बैंक भी होता है ना, ब्लड बैंक भी होता है, तो बैंक का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना वर्ड का, इस वर्ड का, तो वो क्या मतलब है इसका? किसी को नहीं पता? Sir, collection or saving? हम्म, किसी चीज को जमा करना, या वो जगह जहाँ पे चीजें जमा होती हैं, या किसी चीज की कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये आम जो बैंक्स होते हैं, अलाइड बैंक हो गया, मीजान बैंक हो गया, यूपीएल हो गया, इन बैंक्स को देखा जाए तो इन यहाँ पर पैसा जमा होता है, करेंसी यहाँ पे जमा होती है। ब्लड बैंक की बात की जाए तो वहां पर ब्लड जमा होता है, मुख्तलिफ टाइप्स के ब्लड्स। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से बैंक रिक्वायर्ड होंगे? बेसिकली यहाँ पे आपको मटेरियल की स्टोरेज के लिए बैंक्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मटेरियल स्टोरेज, अब सीमेंट बैग्स आ जाते हैं, सीमेंट बैग्स आ जाते हैं बहुत सारे, आप ले आते हैं, तो वो आप ओपन टू स्काई तो नहीं छोड़ सकते, तो वो सीमेंट बैग स्टोर करने की जगह है या नहीं है, कलेक्ट करने की जगह है या नहीं है। सिमिलरली स्टील रिइंफोर्समेंट बार्स आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो प्रॉपर्ली स्टोर करने की जरूरत है, जगह है या नहीं, स्पेस है आपके पास, उसके लिए कोई जगह, एक्स्ट्रा जगह आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अब सीमेंट बैग्स को भी आप ओपन टू स्काई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बारिश हो जाए तो वो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अगर वो सीमेंट बैग्स गीले हो जाए तो वो सीमेंट जो है सारा जाया हो जाता है। कंडीशंस ऑफ स्ट्रीट्स के वहां पे रास्ता कैसा है, एक्सेस है या नहीं प्रॉपर, एंड एफिशिएंसी ऑफ लोकल वर्कमैन, वहां पे आसपास जो लेबर आपको अवेलेबल है वो किस लेवल के हैं, आपके स्किल्ड लेबर्स हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, ये चीजें आप देख लेंगे। Then we comes towards the types of estimates. We were discussing the types of estimates. There are basically estimates can be divided into or categorized into two categories. The first one is the rough estimate, and the second one is the detailed estimate. And the detailed estimate can be further classified into three categories, which are the contractor's estimate, engineer's estimate, and progress estimate. So what do you think, what is the difference between rough estimate and detailed estimate? नेम से आप लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं?
What is the difference between rough estimate and detailed estimate? G, anyone, please. सर जी हमारे पास जो रफ एस्टिमेट होता है सर जी हम अंदाजे से लगाते हैं, साइट के चक्कर लगा के ना सर जी उधर से अंदाजा लगा के वो कर लेते हैं सर। और डिटेल जो होता है सर जी वो उसी तरह कैलकुलेशन करके सर हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ऑलराइट। और कोई बताए अपना पॉइंट ऑफ व्यू? सर रफ एस्टिमेट हम उससे भी किया, मतलब जो इनिशियली जो एस्टिमेट हम कर सकते हैं, तो होता है जो इनिशियली सर एस्टिमेट उसको हम रफ एस्टिमेट कह सकते हैं सर। इनिशियल एस्टिमेट आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, आपके पास स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो आप एक रफ एस्टिमेट कैसे करेंगे? सर तो वो उसको मतलब प्रोजेक्ट के लिहाज से मतलब देखेंगे कि मतलब अगर मतलब आपको तो वो डेटा मतलब प्रोवाइड करेगा ना सर, तो इसके मुताबिक अगर आप इनिशियली कर सकते हैं कि मतलब ये इसके मुताबिक ये मतलब ये एस्टिमेशन हम कर सकते हैं, मतलब इतनी वैल्यू आएगी इसकी सर। अच्छा, देखिए डिटेल्ड एस्टिमेट वो होता है जो आप फॉर विच यू आर when the drawings, detailed drawings, structural drawings, architectural drawings and specifications are available to you, and you properly calculate each and every item and quantity of each item required, and then you will calculate the cost of each item, and then total then add up the cost of the each individual item, and you'll get the total cost of the project. So this is something detailed estimate. But when you don't have any drawings or specifications, and you're just given an area or type of work, और आपको ऐसे अंदाजा लगाना होता है कि एस्टिमेट कैसे करना है, तो दैट इज बेसिकली रफ एस्टिमेट। अब ये करते कैसे हैं? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके हैदराबाद में फेज 5 में कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेट्स से 10 मरले का घर था और डबल स्टोरी घर बनाया है किसी ने आपके एरिया में ही, आपके 7 वाली स्ट्रीट में, या एक स्ट्रीट छोड़ के रिसेंटली बनाया है, और आप उसका टोटल कॉस्ट आया है लेट्स से 50 लाख रुपीस, और एरिया था 10 मरला। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर 50 लाख रुपीस इसका कॉस्ट आया है और 10 मरला उसका एरिया है, तो अगर इसको हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें 10 मरला को, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 272.72 will give you 2727 स्क्वायर फीट, एंड उसका कॉस्ट जो था वो 50 लाख रुपीस था। तो 50 डिवाइड बाय 2727 स्क्वायर फीट, तो आपके पास आ जाता है 183 रुपीस पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 183 रुपीस पर स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट है, इस घर पे कॉस्ट आया। अब इन केस अगर आपने भी उसी एरिया में या एक स्ट्रीट छोड़ के घर बनाना है और तकरीबन इसी तरह का कुछ घर है, तो वो आप एक रफ एस्टिमेट कैसे लगाएंगे? लेट्स से आप हमने वैसे आइडिया लगा लिया कि इस एरिया में 183 रुपीस पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रहा है, तो अगर मैं अपना घर बनाता हूँ और मेरा जो घर है वो 5 मरले का है, तो 5 मरले में कितने स्क्वायर फीट हो गए? 5 into 272.72, this is 1363.6 square feet, and this multiply by per square feet cost कितना है? 183 हमारा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट था। तो ये आपका 5 मरले का घर बनाने में आपका 24 लाख रुपए तकरीबन जा रहे हैं, या 25 लाख रुपए ऑलमोस्ट। तो दिस इज समथिंग रफ एस्टिमेट।
सर जी प्लीज। सर ये तो डिपेंड करता है सर, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है सर। अगर उसने 50 लाख रुपए मतलब खर्च किए मतलब अपने 10 मतलब हाउस पे, तो उसकी मतलब इतने किस कंस्ट्रक्शन की है, 1 स्टोरी की है, 2 स्टोरी की है, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम मतलब करते हैं तो उसके मुताबिक तो ये मतलब जी जी सिमिलर तो नहीं होगा ना सर। जी जी, मैंने स्टार्ट में यही कहा कि अगर उसने डबल स्टोरी ने अपना घर बनाया और आप भी डबल स्टोरी बना रहे हैं, तो यू कैन टेक दिस एग्जांपल। if you are constructing a single story house, then you can use the cost of a single story house in your nearby location, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपके एरिया में कितना कॉस्ट आ रहा है पर स्क्वायर फीट। आप इस तरह कर सकते हैं। सर जी सर जी सर अगर लेट सपोज हम मतलब कंस्ट्रक्शन गांव में कर ले मतलब, तो वहां पर तो ये मतलब ये तो नहीं होता कि मतलब ये गांव पे इतना खर्च, घर पे इतना खर्च आया था, तो इसकी लिहाज से हम मतलब अपने घर पे इतना आएगा। तो उधर हम किस तरह फिर मतलब एस्टिमेशन कर सकते हैं? अगर हमारे पास दूसरे जो हाउसेज हो उसकी मतलब हमें प्राइस का पता ना हो, तो उस लिहाज से हम किस तरह करेंगे सर? नहीं, दूसरे हाउसेस की प्राइसेस का क्यों नहीं पता होगा आपको? अब सर आप, उधर तो आपके मतलब आपके अपने जी एरिया सर। में लेट्स से गांव है, तो उसमें पूरे गांव में जो है रिसेंटली कोई घर नहीं बना होगा। अगर लेट्स से 100 साल पुराना गांव है, तो 100 साल में कोई भी कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं होगी। सर वो तो ठीक है, मगर उधर तो डिजाइन डिजाइन तो नहीं होता ना सर, कि मतलब आर्किटेक्चर डिजाइन तो नहीं होता कि इस डिजाइन पर मतलब मैं घर बनाना चाहता हूँ। उधर तो जनरल स्ट्रक्चर होता है कि मतलब आपको बता देता है कि मतलब मुझे इतने कमरे चाहिए, मुझे मतलब इतना ये चाहिए, तो उसके मुताबिक आपको एस्टिमेशन करनी पड़ेगी सर। तो ये मैंने स्टार्ट में किया, दिस इज रफ एस्टिमेट। इसमें और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस काफी ज्यादा हो सकता है। दिस इज नॉट द डिटेल्ड एस्टिमेट। अगर आपको डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिए और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, तो यू मस्ट प्रिपेयर द ड्राइंग फर्स्ट एंड योर आर्किटेक्चरल प्लान्स, एंड देन आप डिटेल एस्टिमेशन के लिए बैठ जाएं एंड उसको क्वांटिटीज को एस्टिमेट करें एंड देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आप ये कर सकते हैं। फिर अगर आपको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप पहले ड्राइंग्स बना लें, प्रिपरेशन प्लान्स बना लें। उसके बाद आप जो आगे हम नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में हम मेथड्स देखेंगे कैलकुलेशन के या एस्टिमेशन के फॉर बिल्डिंग्स, तो वो यूज करते हुए आप अपने क्वांटिटीज एस्टिमेट करें, उनको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट से, और यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। ओके सर। So okay, so this is the basic this is the introduction to the rough estimate. अब रफ एस्टिमेट जो है आप डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि एरिया की बेस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मली कि आपके एरिया में कितने पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रहा है एक एवरेज बिल्डिंग का। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर जो कितने स्टोरी है या कितना एरिया है, कवर्ड एरिया, तो उसकी उसकी बेस पे आप अपने बिल्डिंग का एक अंदाजा सब लगा सकते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल है तो वो आप पर स्टूडेंट पे भी कर सकते हैं कि अगर रिसेंटली एक जगह पे या नियर बाय लोकेशन में कोई हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें कैपेसिटी जो है 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। तो अगर आप 200 स्टूडेंट को आप उस हॉस्टल की कॉस्ट को डिवाइड करते 200 स्टूडेंट्स पे, तो आपके पास पर स्टूडेंट कॉस्ट आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला हॉस्टल बनाना चाहते हैं। तो आपके पास अंदाजा है कि पर स्टूडेंट कॉस्ट जो है हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन का इतना है। तो आपके पास अगर आप 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का हॉस्टल बनाना चाहते हैं या 500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का हॉस्टल बनाना चाहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपके पास एक अंदाजा आ जाएगा, रफ एस्टिमेट आ जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स का पर बेड के हिसाब से लगा सकते हैं, होटल का पर गेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं, ये कितने गेस्ट आप अकोमोडेट कर सकते हैं। सिमिलरली
कमर्शियल प्लाजाज या ऑफिस या शॉपिंग सेंटर्स को आप पर क्यूबिक फीट की बेस पे आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और अगर आप किसी वाटर टैंक या रिजर्वायर का एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं तो पर गैलन आप कर सकते हैं कि कितने गैलन की कैपेसिटी और पर गैलन कैपेसिटी की कॉस्ट कितनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपने रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर या वाटर टैंक के साथ, तो आपके पास वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप रोड्स की एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं या रेलवे या ट्रैक की एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं तो पर मीटर और पर किलोमीटर कितना कॉस्ट आ रहा है रोड पर, तो आप पर किलोमीटर कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, एस्टिमेट कर लें। अब आपका रोड, आप जो रोड कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं वो उसकी लेंथ क्या है, लेट्स से 100 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर पे इतना कॉस्ट है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा थ्रू रफ एस्टिमेट। यहाँ मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं कि ये हम रफ एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको अगर रोड की मैं बात करूं तो इसमें आपको टॉप लेयर और जो बेयरिंग कोट है या बेस कोर्स है या सब बेस कोर्स है, तो उसको हर एक को इंडिविजुअली कैलकुलेट या क्वांटिटी एस्टिमेट करके उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक अंदाजा लगा लेते हैं कि एक एवरेज जो है वैल्यू इन तमाम लेयर्स की कंस्ट्रक्शन के बाद पर किलोमीटर आपका कितना कॉस्ट आ रहा है ऑन एन एवरेज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिटेल्ड एस्टिमेट करें तो फिर हर एक लेयर को इंडिविजुअली एस्टिमेट करेंगे। इसी तरह फॉर स्ट्रीट्स यू कैन डू इट पर 100 फीट और पर मीटर लेंथ, और सिमिलरली अगर आप ब्रिजेस की बात करते हैं तो उस केस में भी आप पर यूनिट लेंथ आप एस्टिमेट करते हैं, पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस क्लियर स्पैन, नॉट द टोटल ब्रिज, टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज। क्लियर स्पैन का क्या मतलब है? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लियर स्पैन। सर टू सपोर्ट के दरमियान जो लेंथ, दो सपोर्ट्स के दरमियान जो स्पैन होगा वो। अब ये नहीं कि आप टोटल जो ब्रिज की लेंथ है उसको वो ले लें, आपने बेस करना है क्या कि दो सपोर्ट्स के बीच में जो स्पैन है उसकी लेंथ वो कितनी है, क्योंकि जितना स्पैन ज्यादा होगा दो सपोर्ट्स के बीच में उतनी ब्रिज की कॉस्ट इंक्रीज होगी, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड more deep beams and more you have to properly design and invest on the proper design of the materials and ensuring the qualities to maintain the structural stability. So this was all about the rough estimate. Now when we talk about the detailed estimate, so I've already discussed it, that when you are provided with the detailed drawings, architectural drawings, structural drawings and specifications, then you go towards the detailed estimate. When you are doing the detailed estimate, you may prepare a table which is called as bill of quantities. हम ये आगे देखेंगे बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है। ये एक टेबल होता है जिसमें हम सारा डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, one another important thing which I should discuss here, I should discuss here, the unit in which you will take the quantities. आपने यूनिट्स का ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पाकिस्तान में या पेशावर में प्रैक्टिस ये है कि नॉर्मली जो बिल्स प्रिपेयर होते हैं या एस्टिमेट्स प्रिपेयर होते हैं वो उनमें एक्सकवेशन को
एक्सकेवेशन को लेट्स से लिया जाता है पर क्यूबिक मीटर में एस्टिमेट किया जाता है। अब आपको ये नहीं पता कि आपकी लोकल प्रैक्टिस क्या है और आप एस्टिमेशन के लिए बैठ गए और आप एस्टिमेशन कर रहे हैं एक्सकेवेशन की, and you have estimated the quantities in let's say inch cube or cubic inch or cubic centimeter, तो वो उसको कंपेयर करना वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के साथ वो मुश्किल हो जाता है। तो यू मस्ट नो what is the standard practice and which item is estimated in its units। तो आपने किस आइटम के लिए कौन सा यूनिट यूज करना है, तो यू मस्ट नो एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट। अच्छा, once the estimation has been completed, आपने सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली, फिर उनको यूनिट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर ली और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब उसमें कंटिजेंसीज भी आप ऐड करेंगे या वर्क एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस भी ऐड करेंगे। तो चले पहले बात करते हैं कंटिजेंसी की। कंटिजेंसी मैंने पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, वो कॉस्ट होता है जिसका एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे आइटम्स हैं, आपको प्रोजेक्ट में कोई स्कॉच टेप जरूरत पड़ गई या जो स्टील की नेल्स मेखें जो होती हैं वो जरूरत पड़ गई या छोटी छोटी कोई चीज जरूरत पड़ जाती है, तो उसका आपको अंदाजा नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आती है उस पर। उन चीजों को कवर करने के लिए आप 3% और 3% to 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट अमाउंट आप ऐड कर देते हैं। 3% to 5%। अब ये 3 to 5% ऑफ व्हाट? 3 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो योर टोटल कॉस्ट विल बी द टोटल material cost plus the contingency. Contingency will be 3 to 5% of the material cost. And you can add the work establishment charges or establishment charges simply 1.5% to 2%. These are the charges from which you will have to pay the salaries of the security guard or any supervisor hired for the supervision of the work। तो वो चीजें आप यहाँ से वो सैलरीज उनकी आप इस फंड में से दे सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंटल चार्जेस जो हैं वो जो सुपरविजन के हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं 5 to 10% डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द और द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस। तो इसके बाद आपका ग्रैंड टोटल कॉस्ट आ जाता है। So this is the table which I was discussing with you. This is called as bill of quantities, BOQ. In this table, this is the first column, which is serial number, then description of item, then numbers. Let's say अगर मैं कह रहा हूँ कि वॉल है, कोई एक वॉल है, तो आप वॉल बता देंगे कौन सी वॉल है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे फिर नंबर्स। उस तरह की कितनी वॉल्स हैं, चलिए उसको और सिंपल कर दें तो बीम की बात कर लेता हूँ। एक बीम है, आप लिख दें इधर कैंटिलीवर बीम फॉर द छजा। उस तरह की कितनी बीम्स हैं, नंबर्स 5 बीम्स हैं, यहाँ पे लिख दें 5। उस बीम की लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है एंड हाइट क्या है, मल्टीप्लाई करें तीनों को, यू विल गेट द क्यूबिक द क्वांटिटीज इन द वॉल्यूमेट्रिक यूनिट्स। इस क्वांटिटी को आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ आइटम विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, so this type of table is called as bill of quantities. Then there is after that you have to prepare the abstract of cost. यहाँ से जो आपके पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, अगेन यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिख देते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं, और यहाँ पे वो क्वांटिटीज आप लिख देते हैं जो आपके पास पिछले टेबल से आई हैं।
अब यहाँ पे आप यूनिट रेट लिख देते हैं, फिर आप रेट पर यूनिट लिख देते हैं कि अलर्ट से अगर बीम है या बीम की कंक्रीटिंग है तो कंक्रीटिंग आप पर क्यूबिक फीट कितना चार्ज ले रहे हैं, कितने चार्जेस हैं इसके। तो लेट से 200 रुपीज पर क्यूबिक फीट है और यहाँ पे क्वांटिटी जो है 1000 क्यूबिक फीट है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी के साथ एंड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द बीम। And similarly, you will repeat the same exercise for the rest of the items and you will get the total cost of the project. Is it clear till this point? Yes, sir. Then the next point of discussion is the data required for detailed estimate. So what do you think, what data should be, must be available to you people for preparing a detailed estimate? आपके ख्याल में क्या डाटा होगा ऐसा? कौन कौन सी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए before you sit down and start to prepare the estimate? सर प्रॉपर मेजरमेंट्स होनी चाहिए हमारे साथ। ओके, इसके अलावा? और सर मार्केट रेट्स जो मटेरियल अवेलेबल है उनकी रेट्स होनी चाहिए सर। ओके गुड। और प्रॉपर मेजरमेंट्स तो आपके पास आ जाएंगी कहाँ से? ड्राइंग से, ठीक है, ऐसा ही है। यस सर। रेट्स कहाँ से आ जाएंगे आपके पास? मार्केट सर्वे कर लें या आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल स्केड्यूल ऑफ रेट्स होता है, एमआरएस, मार्केट रेट सिस्टम, तो उसके थ्रू भी आप रेट्स ले सकते हैं। केपीके का अलग मार्केट एमआरएस पब्लिश होता है, इसी तरह बाकी प्रोविंस के अलग पब्लिश होते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट, आई हैव अ कॉल टू रिसीव।
Okay, what was talking about? The data required for the detailed estimate, the lengths and dimensions of the different elements will be obtained from the drawings. उसके अलावा आपको चाहिए होगा स्पेसिफिकेशंस के अब डिफरेंट अपने वॉल्स के ऊपर प्लास्टर कितने इंच का करना है, कितने कोट्स करने हैं, कितने कोट्स पेंट्स के करने हैं, किस टाइप का पेंट करना है, किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास स्पेसिफिकेशन से आ जाएगी. एंड द लास्ट थिंग इज द रेट्स. तो रेट्स जो है आपके पास या तो आप खुद ही जाकर मार्केट से डिफरेंट आइटम्स के रेट ले लें, या आप ये कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड MRS है, मार्केट रेट सिस्टम, या कंपोजिट स्केड्यूल ऑफ रेट्स जिसको कहते हैं, तो वो आप डाउनलोड कर लें नेट से एंड उससे आप हर चीज़ के रेट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कंक्रीटिंग का क्या रेट चल रहा है, एक्सकेवेशन का क्या है, एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट सॉइल क्या रेट है, एक्सकेवेशन इन हार्ड रॉक्स क्या रेट है, तो ये चीज़ें आप वहाँ से आप ले सकते हैं. ठीक है. रेट्स का क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है सर. ओके. पहले कभी MRS का नाम सुना है वैसे? यस सर. अच्छा. यस सर. ओके. Then we have already seen that there are three different types of detailed estimate, which includes the contractor's estimate, the engineer's estimate, and the progress estimate. So these are very simple. The estimate submitted or prepared by the contractor for applying for the project is basically called as contractor estimate, and if and the estimate which is already prepared by the client for the comparison purpose with the contractor's bill or other stuff, so that estimate is basically called as engineering estimate. Also, there is another type of or third type of estimate which is called as progress estimate. This is submitted by the contractor or engineer. This is prepared by the contractor for claiming the bills during the project. तो ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट वो तमाम चीज़ों के डायमेंशन मेजर करता है, तो वो उसकी बेस पे एस्टिमेट बनाता है कि मैंने इतना काम किया है एंड यू मस्ट पे मी फॉर दिस थिंग. So that type of estimate is basically called as progress estimate. आपको ये याद है व्हाट इज कंटीजेंसी? कंटीजेंसी क्या होता है? सर जो हम इजाफी 3 to 5% कॉस्ट एस्टीमेट लेते हैं सर. तो वो किस लिए लेते हैं? सर आप ही की एग्जांपल देते हैं सर. वो आपने वो मेखो की एग्जांपल दी थी कि हमने उनको भी ऐड करना होता है सर. वो तो सर डिटेल BOQ में नहीं होता ना सर, हम वो नहीं लिखते, लेकिन हम जब देते हैं सर तो कंटिजेंसीज में उसको ऐड कर लेते हैं सर. ठीक है, ऑलराइट. So this slide is about contingencies by yourself. यही बातें की गई कि 3 to 5% आप ऐड करते हैं और फॉर अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस या आप जो है कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपने एस्टिमेशन में नहीं दिए थे, उनको कवर करने के लिए आप 3 to 5% आप ऐड कर सकते हैं. Okay, so this was the
introduction towards the and some basics about the estimation. So I think आज के लिए इतना काफ़ी है because students भी इतने नहीं हैं. And अगला जो topic है वो that is a little bit important. So I want all of the students to in the class for the next topic. Okay, sir. Yes, sir. Okay, in the next class, we will discuss about the different units जिनमें हम estimate करते हैं. हम different quantities देखेंगे, उनके units देखेंगे, कौन सी quantity को हम किस units में estimate करते हैं, और कुछ extra चीजें हम उसमें discuss करेंगे. And then we will move towards the methods of estimation, and we will solve the numerical problems. Okay, sir. Okay. Papers submit हो गए सबके? सर जी Yes.